Hit the subscribe button and click on the bell icon to stay updated with my channel. Hi, hello, namaskar, namaste, salam walaikum, sat shri akal to everyone. Welcome to another episode of Rahul's Aquatic Vlogs. Guys, I hope you all are doing well and I hope you all are safe in your home. So in today's episode, I'm gonna be talking about what will happen, like how will you save your fishes when there's a huge power cut. Like कभी करंट वगैरह चला गया तो आप लोग कैसे उस सिचुएशन को आप लोग मतलब हैंडल करेंगे. एंड यू नो एक पावर आउट हो जाना मतलब करंट चले जाना लाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम इज़ वेरी वेरी लाइक क्रूशियल फॉर अ फिश कीपर लाइक अस. ठीक है, सो how will we like survive that situation, and cyclone is coming towards Bengal and Orissa, so we must be all safe. The Amphan cyclone, and like there's a huge possibility that इसके वजह से हम लोगों का power cut हो जाए. So how will you like manage this situation for your fishes so that कुछ problem ना हो if by chance something happens, like by God's grace I hope कुछ ना हो. So I'll be explaining it to you in this video. And before that guys, if you aren't subscribed to this channel guys, hit the subscribe button over there and follow me in Facebook and Instagram for exclusive updates. You can also follow my fish store page, that is Spices the Fish Store. A link will be given in the description box down below. So guys, let's start off with today's video. So what will happen, think of a situation, you're having fishes in your house jiska like as a tank like this. So a lot of fishes are over here. You're concerned कि दो concern हो सकता है आपका. First concern is lack of oxygen. Second concern is the temperature. अभी मैं second concern से start करता हूँ because it will be easy to wrap it up. So temperature अगर fall कर गया तब क्या होगा, fishes को problem दिक्कत हो सकता है. देखिए some fishes have problem when temperature drop कर जाए, but rest other fishes do not have problem. और हम लोगों के इंडिया में जो क्लाइमेट है इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, स्पेशली आवर साइड लाइक बंगाल हो या मुंबई हो या फिर चेन्नई हो. वी वोंट फील दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम, बट स्टिल इट्स अ पॉसिबिलिटी. अगर इफ़ यू गाइज आर हैविंग प्रॉब्लम इश्यूज इन टेम्परेचर या मेंटेनिंग द टेम्परेचर, व्हाट यू विल डू, आप लोग गर्म पानी लीजिए. गर्म पानी लेके उसको एक फ्लास्क वगैरह या फिर एक बॉटल वगैरह में डाल के आप लोग पानी में फ्लोट कर दीजिए. जब when you're seeing that your temperature is dropping, टेम्परेचर जब ड्रॉप कर जा रहा है आप वहाँ पे ऐड कर दीजिए. तो धीरे धीरे क्या होता है वो टेम्परेचर स्टेबलाइज हो जाता है एंड इट विल हेल्प यू अलॉट. प्रोवाइडेड गाइज यू प्लीज़, आई होप यू गाइज हैव अ थर्मोमीटर इन योर टैंक, लाइक एक डिजिटल थर्मोमीटर हो या फिर जो भी हो. अगर थर्मोमीटर होता है तो बहुत सुविधा होता है. ठीक है, so that's the thing. I don't have a thermometer over here right now, but I do use it for checking the temperature of my tank. So ये गया एक situation. Next जो situation हम लोग face करेंगे, I have jotted down points, what will you do and what not to do. ठीक है, तो ऑक्सीजन वाला situation बहुत बहुत डेंजरस हो जाता है. How? Let me tell you, like the people who are keeping Malawi और Tanzania में बहुत बार मैं ये सुना हूँ, या फिर जियोफेगस वगैरह भी मैं बहुत बार मैं ये सुना हूँ कि आई सी अपडेट्स फ्रॉम फेसबुक की लाइन्स ऑफ फिशेस, मतलब ऐसा ऐसा करके बहुत सारा मछली, मरा हुआ मछली को लाइन करके रख के उसको फोटो खींच के लाइक पीपल आर राइटिंग कि अ सैड डे फॉर मी एंड द रीज़न इज़ व्हाट, पावर कट. तो दे आर नॉट अवेयर ऑफ इट कि कैसे क्या होता है. पावर कट हो गया है तो दे डू नॉट नो कि कब हुआ है, बट 10 घंटा 12 घंटा हो गया या फिर 6 घंटा हो गया एंड द फिशेस सफोकेट एंड दे डाई. So that's the case. अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, what will we do and what not will we do in this situation? Let me tell you. What you can do, I've jotted down points. The first one which I want to speak about is unplug all the equipments in your like aquarium, like be it heater, be it pump, shut it off. I'll tell you the reason a bit later. क्यों मतलब हम ये बता रहे हैं, I'll tell you a bit later. Second thing which you should do, that is do not feed your fishes. ठीक है, फूड ज़्यादा मतलब खिलाएंगे पानी में तो फिल्ट्रेशन बंद हो चुका है, योर फिल्टर्स आर ऑफ. ओके, सो फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, सो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, एमोनिया नाइट्रेट का लेवल बढ़ जा रहा है पानी में, एंड दैट्स लाइक पॉइजन टू योर फिश.
सो जितना वेस्ट क्रिएट करेगा पानी में उतना पैरामीटर्स खराब होगा एंड एट लास्ट योर फिश इज गोना डाई. सो व्हाट यू कैन डू इज स्टॉप फीडिंग द फिशेस फॉर दैट टाइम. 4-5 दिन बिना खाए पिए मतलब फिशेस कैन स्टे. एंड इफ़ यू आर वरीड अबाउट द एग्रेशन कि एग्रेशन हो जाएगा लाइक टैंक में जो फिशेस है ये मार देगा उसको, फाइट कर रहा है, मॉन्स्टर फिशेस है, व्हाट टू डू? टर्न ऑफ द लाइट्स, जस्ट टर्न ऑफ द लाइट्स. इट विल रिड्यूस देयर स्ट्रेस. जितना कम दिखेगा दे वोंट फाइट, दे वुड यू नो मोस्ट ऑफ द टाइम दे वुड बी अराउंड लाइक स्लीपी, लाइक दे स्लीप, यू नो अंधेरे में रहता है तो ज़्यादा मूवमेंट ज़्यादा नहीं रहता है. सो दैट वुड बी हेल्पफुल टू यू. सो टर्न ऑफ द लाइट्स. ओके, टर्न ऑफ द लाइट्स. स्टॉप फीडिंग क्योंकि नाइट्रेट वगैरह बढ़ जाता है. ओके, सो नेक्स्ट थिंग विच आई एम गोना टेल यू इज remove all the biological media, because you know the beneficial bacteria which is in the biological media will die if you're using a top filter. like वो उसको अगर पानी मतलब क्या होता है जब टॉप फिल्टर चलता है so the पानी जो रनिंग वाटर जो आता है वो सूख जा मतलब वो नहीं रहता है. जब पावर ऑफ हो जाता है तब वो पानी नहीं रहता एंड रिमेन्स एंड इट बिकम्स ड्राई. अगर बायोलॉजिकल मीडिया ड्राई हो जाता है देन बेनिफिशियल यू नो द नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया विल डाई. सो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, आपका साइकिल बर्बाद हो जाएगा. बाद में वही जब आप लोग मतलब वही मीडिया फिर से देंगे वाटर पैरामीटर्स में गड़बड़ी आ सकता है. सो बेटर व्हाट टू डू, हाउ विल यू सेव योर बेनिफिशियल बैक्टीरिया? You can do the nitrifying bacteria. What you will do, you will take your biological media, put it in a bucket of water, maybe tank water हो या फिर normal fresh water हो, उसमें डाल दीजिए, डाल के उधर में रख दीजिए. If it stays wet, then the bacteria will survive for कुछ मतलब टाइम तक वो बच जाएगा. एंड होपफुली उसके अंदर अगर तब तक अगर पावर कट का वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए देन फिर से आप उसको वापस डाल सकते हैं. ठीक है, अभी नेक्स्ट जो बताऊंगा कि मीडिया सब हटाने के अंदर अब ये जो पावर कट का जो मैंने बात बोला कि जब जो पावर ऑफ कर देने का, जो प्लग अनप्लग कर दीजिएगा, व्हाई डिड आई से दैट? क्या होता है स्पेशली पीपल हु आर कीपिंग यू नो लाइक टॉप फिल्टर्स, तो क्या होता है ना वो कंटिन्यूअस प्रोसेस चलता रहता है. जब वो टॉप फिल्टर चलता है मतलब यहाँ से वेस्ट को उठा रहा है, पानी को उठा रहा है, फिल्टर करके डाल रहा है, ये कर रहा है. सो जब वो काम करना बंद हो जाता है कुछ देर के लिए तो क्या होता है उसमें तो वेस्ट तो अटक जा रहा है ना, जो फिल्टर पैड हो या फिर बायोलॉजिकल मीडिया हो उसमें कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा तो वो क्या बोलते हैं गंदगी मतलब द फिश पूप गेट्स स्टक ओवर देयर एंड बहुत गंदा रहता है. सो क्या होता है कि उसमें फॉर दैट टाइम बीइंग जब तक वो पावर ऑफ है टॉप फिल्टर में टॉक्सिन्स और भी बढ़ जाता है. अचानक से अगर करंट आ गया, फिल्टर चालू हो गया एंड क्या होता है वो वेस्ट फटाक से पानी में गिर जाता है, मतलब आ जाता है एक साथ में पूरा लोड पूरा आ जाता है. यू कैन सी लाइक आप लोग देखे भी होंगे कि मतलब फटाक से ज़्यादा गंदा मतलब पानी में आ गया. एंड इफ़ यू आर नॉट देयर इन दैट सिचुएशन इट्स वेरी ट्रबल फॉर योर फिशेज, मतलब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. मछली मरने का बहुत पॉसिबिलिटी रहता है वो सब सिचुएशन. नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट यू नो द डिप्लीशन ऑफ द ऑक्सीजन. जब वो ऑक्सीजन चला जाता है तब हम लोग क्या मतलब एक क्राइसिस हो जाता है कि इतना सारा मछली है, ऑक्सीजन खींच रहा है, क्या करेंगे? एजिटेट द वाटर. व्हाट इज एजिटेशन? ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे बबल्स जो फॉर्म कर रहा है, तो आप लोगों को माइंड में ये भी आ सकता है कि व्हाई एम आई नॉट यूजिंग एनी एयर पम्प? बिकॉज एयर पम्प का जो काम है वो है वाटर को एजिटेट करना. ये काम मेरा ये कैनिस्टर फिल्टर का ये आउटलेट कर दे रहा है. So that's why I don't need. So ये जो agitation हो रहा है bubble formation, you see lot of small bubbles in my tank, ये agitate हो रहा है मेरा water. So agitation अगर water में हो, oxygen levels you know rise up in the water again, जो मतलब problem होता है वो ऑक्सीजन वापस oxygenation हो जाता है water का and it's very helpful for your fishes. So agitate आप लोग कर सकते हैं. सो कैसे एजिटेट करेंगे? मे बी यू नो हाउएवर हाथ से थोड़ा देर के लिए कीजिए, वो तो ज़्यादा देर के लिए पॉसिबल नहीं होता है. सो व्हाट विल यू डू इज़ दैट यू नो यू गेट लॉट ऑफ बैटरी पंप मिलता है स्टोर पे. यू कैन बाई अ बैटरी पंप एंड यू कैन पुट इट देयर. सो वो काम कर दे रहा है एंड यू आर सेफ. बाई चांस इफ यू आर नॉट हैविंग अ बैटरी पंप तब क्या करेंगे? देन इन दैट सिचुएशन you will start changing your water. ज़्यादा करके नहीं, you will change your water till 30%, 40%, just change your water. अभी फिर फ्रेश वाटर देंगे तो क्या होगा, पुराना जो वेस्टफुल जो वाटर है जिसमें अमोनिया नाइट्रेट बढ़ जा रहा है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जा रहा है, वो वाटर निकल जा रहा है एंड फ्रेश ऑक्सीजनेटेड वाटर इज कमिंग इन योर टैंक. सो योर फिशेस विल बी safe.
ऐसा आप थोड़ा सा कंटिन्यू कीजिए कुछ आवर्स बाद, ठीक है. सो यू विल सी योर फिशेज आर बीइंग इन अ बेटर पोजिशन. सो यू हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वफुल अबाउट योर फिशेस. ऑब्जर्व करना पड़ेगा आप लोगों को कि फिशेस का मूवमेंट क्या हो रहा है. लाइक आर दे यू नो लाइक कमिंग अप, ऊपर में जाके ऐसा मुंह खोल के ऑक्सीजन के लिए उन लोगों का क्राइसिस हो रहा है. यू हैव टू चेक दैट आउट, ठीक है. सो वो सब ऑब्जर्वेशन करके आप लोगों को यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू दैट, ठीक है. नेक्स्ट थिंग जो आप लोगों को हेल्प करेगा इस सिचुएशन में, एक तो गया बैटरी पंप, ठीक है. सेकेंड जो है वो है केमिकल मीडिया. केमिकल मीडिया मतलब क्या, जियोलाइट हो या एक्टिवेटेड कार्बन हो, ठीक है, आप लोगों के पास है, आप लोग अच्छे से वॉश करके आप लोग पानी में डाल दिए. क्या होता है कि जो डिजॉल्व जो आपका अमोनिया नाइट्रेट्स है वो खींच लेता है. सो वाटर में अमोनिया नाइट्रेट्स का लेवल जितना बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ेगा, वो चीज़ कंट्रोल कर लेता है. सो दैट रियली एक्ट्स एज अ वेरी हेल्पफुल थिंग. So in general I don't use chemical media always, but stock रहता है मेरा कि if any situation such thing arises that will help a lot, I can bet. इसके बाद और एक तो जो चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, you're using water conditioner. I hope you're using water conditioner. Like if you're having Seachem का safe और Seachem का prime, okay, use that. बिकॉज यू नो जो वाटर में जैसे सेफ वाटर में जो क्लोरामीन्स क्लोराइड यू नो नाइट्रेट्स वगैरह रहता है वो हेल्प करता है उसको रिमूव करने के लिए. सो ट्राई टू ऐड अ बिट ऑफ यू नो वाटर कंडीशनर इन योर वाटर, इट विल हेल्प. एंटी क्लोरीन कितना हेल्प कर सकता है आई डोंट नो, बट सीकेम सेफ या सीकेम प्राइम बहुत हेल्प कर सकता है इस सिचुएशन में. सो यू कैन यूज दैट विल हेल्प यू अ लॉट. So anyways, this is the whole situation in which you can do. And एक important बात जो आप लोगों को बताना है कि जो लोग कैनिस्टर फिल्टर यूज़ कर रहे हैं या फिर सम्प यूज़ कर रहे हैं, you know, सम्प एंड कैनिस्टर फिल्टर यूजर्स बी वेयर. लाइक सम्प के लिए, कैनिस्टर फिल्टर के लिए उतना ज़्यादा नहीं, बट फिर भी आई टेल यू टू टर्न ऑफ दैट. जिन लोगों का ऑटो क्लीनिंग वगैरह नहीं है कैनिस्टर में, यू नो जो नॉब रहता है इनलेट और आउटलेट का, नॉब को बंद कर दीजिए जब पावर ऑफ आप लोग जब स्विच ऑफ कर दे रहे हैं, मतलब कैनिस्टर का, वो ऑफ कर दीजिए. क्योंकि क्या होता है वाटर लेवल्स अप एंड डाउन रहता है, मतलब एयर घुस जाता है उसके अंदर, और एज अ रिजल्ट क्या होता है आपका कैनिस्टर के अंदर एयर घुस गया तो ये बहुत यू नो प्रॉब्लम कर सकता है आपका कैनिस्टर के लिए, खराब हो सकता है. ओके, सो यू कैन डू दैट. सम्प के लिए जो आपका जो पाइप है, एक अगर ओवरफ्लो बॉक्स नहीं है, यू हैव टू टर्न ऑफ यू नो द सम्प. लाइक अगर वो जो की होता है सम्प का, जो इन आउटलेट के साथ, लाइक जहाँ से टैंक से पानी जा रहा है सम्प में, वो आउटलेट ऑफ कर दीजिए, क्योंकि सम्प ओवरफ्लो कर गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. एंड एज आई हैव टोल्ड यू कि टर्न ऑफ ऑल द स्विचेस. अगर स्विच ऑफ नहीं किए, सम्प ओवरफ्लो कर गया, देन अपने आप करंट आ गया, देन वो जो डिफरेंस हो जाता है वाटर का इन योर बोथ सम्प रेशियो जो रहता है, टैंक इज टू सम्प का जो रेशियो रहता है वो गड़बड़ हो जाएगा. जब करंट आ जाएगा तो आपका सम्प में वाटर कम पड़ जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट आपका पंप खराब हो सकता है, बिकॉज योर पंप विल बी रनिंग ड्राई, एंड मे बी आपका मीडिया पे भी अफेक्ट कर सकता है. सो टोटली दिस होल सिचुएशन वर्क्स आउट लाइक दिस. लास्ट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू, ये जो सिचुएशन आपको बोला था टॉप फिल्टर का, इफ़ यू फीलिंग लाइक यही टाइम है व्हेन यू कैन यू नो वॉश योर मैकेनिकल मीडिया. क्योंकि जब ऑन करेंगे ऑब्वियसली एक वाटर में तो गंदगी होने का एक बहुत पॉसिबिलिटी है, जब वो ऑन होगा तो गंदगी निकल आता है. सो एज आई टोल्ड यू इन केस ऑफ टॉप फिल्टर, बट सम्प जो लोग सम्प यूज़ कर रहे हैं या फिर टॉप फिल्टर्स जो भी है, take out your you know mechanical filters like polyester wool हो या sponge pad हो, take it out, wash it and keep it clean and again add it. I think this will really help you. Biological media, I have told you, for sump keepers biological media is not an issue because वो भीगा हुआ ही रहता है, सम्प में रहता है, इंटरनल सम्प हो एक्सटर्नल सम्प हो, सम्प में ही रहेगा, भीगा ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा. So this is the total situation. I hope I could have helped you. Like I hope like this will be helpful to you. मैं पूरा जितना explanation दे पाया I gave it to you. If you enjoyed this video somehow and it has been helpful to you, then surely hit the like button over there and share this video with your friends and family. So guys, this is it. Guys, take care. Bye bye. See you. Meet you in my next episode.